Everyone in the neighborhood had come to ask about his health. Now, when his days were drawing to a close, no one visited him. Most of his old friends were dead. His sons had grown up. One was working in a local garage, the other had stayed in Pakistan, where he was at the time of partition. Partition. The children who had bought kites from him 10 years ago were now adults struggling for a living. They did not have time for the old man and his memories, having grown up in a swift changing, competitive world. They looked at the old kite maker with the same indifference as they show towards the banyan tree. Both were taken for granted as permanent fixtures that were of no concern to the mass of humanity that surrounded them. No longer did people gather under the banyan tree to discuss their problems and their plans. Only in the summer months did someone seek shelter under it from the fire's sun. But there was, of course, the boy, his grandson. It was good that his son worked close by, and he and the daughter-in-law could live in Mahmud's house. It glended एन कहाँ है? gladed gladed his heart to watch the boy at play in the winter sunshine, growing under his eyes like a young and well nourished sapling. Nourished sapling, putting forth new leaves each day. There is a great affinity between trees and man. They grow at much the same pace. If they are not hurt or not starved or cut down, in their youth they are resplendent creatures, and in their declining years they stoop a little. Remember, they stretch their brittle limbs in the sun, and with a sigh shed their last leaves. मीनिंग पता होगी ना? कुछ अता पता है। हाँ? कुछ अता पता नहीं है तो भेजते क्यों नहीं हो? मतलब कुछ पता है मौलाना, कुछ अता पता नहीं। हाँ, कुछ का नहीं पता है ना, जैसे आया है रेस्प्लिडेंट है, ब्रिटल है, स्टूफ है, पता होना चाहिए, भेजते नहीं हो। चलो पढ़ो तर्जुमा कर। Bismillahirrahmanirrahim. When he was younger and had fallen sick, जब वो नौजवान था और बीमार हो गया था। कौन? महमूद। हाँ, महमूद की बात चल रही है, पीछे पतंग उड़ चुकी है ना, अब उसके बारे में बता देंगे। एक मरतबा जब वो बीमार पड़ गया, बीमार पड़ना जी, फालसिक बीमार पड़ना। फाल माने क्या आता है? फॉल मतलब गिरना। हाँ, चलो। Everyone in the neighborhood had come to ask about his health. उसके पड़ोस का हर शख्स उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में पूछने आता। जो भी मिलता मतलब पूछने आता, क्या हो गया, क्या हो गया। Now
When his days were drawing to a close, no one visited. बोला आफ्टर क्या है यहाँ पे? आफ्टर लिखा है, सब किताब में आफ्टर लिखा है। Ask after his health. यहाँ अबाउट लिखा सब कहीं लिखा है क्या? हाँ तो अबाउट ठीक है, अबाउट कर लो। मेरी बुक में यहाँ पे आफ्टर है। हाँ तो तुम लखनऊ में रहते हो ना, सुने से उसको अबाउट करे ले रहे मुना काटो पीटो, ऊपर लिख देना, ठीक है जी, हाशिया चढ़ा देना मुझसे, वहाँ ना काट जी वरना मोबाइल कट जाएगा। जी। When his days were drawing to a close, जब ये दिन गुजर गए। When his days, उसके दिन क्या है, were drawing to close, जल्दी गुजर गए। उसका टाइम हो गया तो ऊपर जाने। अच्छा, मर गया, मरने का टाइम हो गया। अरे मरा नहीं, क्या होना? When his days were drawing, ड्रा मैंने क्या खींचना है ना, to a close, करीब में खींचना है तो मतलब जो उसके दिन करीब आ गए, मतलब टाइम पूरा होने लगा उसका, इस तरह मर के बैठा हुआ है। जब उसके दिन करीब आ गए, no one visited him, किसी शख्स ने भी उसकी ज़ियारत और तीमारदारी न की। नहीं, ना करता था। हाँ, कोई भी उसकी मुलाकात करने नहीं आता था, उसके पास नहीं आता था। तो ये तो पास्ट का है, no one visited him। तो पढ़े नहीं हो, आदत बताते हैं पास्ट में। जी हाँ, इंडिफिनिट के जितने भी हैं सब आदत बताते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। प्रेजेंट का पता था, हाँ, तीनों का मतलब इंडिफिनिट जितने भी हैं तीनों आदत बताते हैं। जी कहते हैं ना, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, तो एक आदत बता रहे हैं ना। Most of his old friends were dead. उसके अक्सर पुराने दोस्त जा चुके थे। कहाँ? अल्लाह के यहाँ मर चुके थे। जल्दी पढ़ो। Sons had grown up. उसके लड़के grown up बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे। तरक्की नहीं, बढ़ गए। गुरु असल में आता है, गुरु माने जो आता है फिजिकल बढ़ोतरी जो होती है, इसको कहते हैं। कोशिश बनाए ग्रोथ, फिजिकल जो तरक्की होती है ना जिसमें, उसको कहते हैं ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या होता है, दूसरे तरक्की जो होती है, बोलने लगता है, ये सब तरक्की है। ग्रोथ माइंडिंग को कहते हैं मौला, वो फिजिकल है। ग्रोथ मतलब फिजिकल। आगे जब साइकोलॉजी पढ़ोगे कभी तो उसमें पढ़ना चाहिए सब। जी One was working in a local garage. एक लड़का करीबी लोकल गैरेज में काम करता था। लोकल मतलब मकामी कर लो, मकामी गैरेज में काम करता था। दो लड़के जा सकते हैं इसके उठ के, तो कह रहे हैं his sons had grown up, उसके लड़के भी जो थे बड़े हो गए थे। एक क्या मकामी गैरेज में काम करता था, और दूसरा the other had stayed the other had stayed in Pakistan where he was at the time of partition. एक शख्स पाकिस्तान में रुक गया था जब इसका बंटवारा हुआ। The other had, दूसरा, वही दूसरा मौलाना, पहला तो जी पहला, दूसरा स्टेड इन पाकिस्तान में ठहर गया, वहीं बस गया जहां जब पाकिस्तान का इंडिया का बंटवारा हुआ। Where he was at the time of partition, ये उस वक्त की बात है, तकसीम के वक्त था।
यानी पाकिस्तानी में रुक गया जहाँ तकसीम के वक्त था, ये बंटवारा हो रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान, तकसीम के वक्त जहाँ वो था वहीं तो। The children, ठीक है, द अदर हैड स्टेड इन पाकिस्तान, और दूसरा लड़का पाकिस्तान में ठहर गया था, वेयर ही वाज, जहाँ वो था, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तकसीम के वक्त। the children who had bought kites from him 10 years ago were now adults struggling for a living. वो बच्चे अगो क्यों पढ़ते हो, एगो पढ़ाते हो, एगो यस, वो बच्चे जो 10 साल पहले उनसे पतंगे खरीदा करते थे, अब वो बड़े होकर अपनी जिंदगी के लिए मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं। जिंदगी के नहीं, रोजी रोटी के लिए, लिविंग रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे जो 10 साल पहले उससे पतंगे खरीदा करते थे, नाउ अडल्ट स्ट्रगलिंग फॉर द लिविंग, वह बड़े हो गए हैं, अपनी रोजी रोटी की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं रोजी रोटी के लिए। तो टाइम नहीं उनके पास पतंग उड़ाने या उनसे मिलने का। जी, they did not have time for the old man and his memories. ये लोग मेमोराइज है, मेमोरीज बोला, ये लोग अपने बड़े बूढ़ों और उनकी यादों के लिए कुछ वक्त नहीं रखते अपने पास। हाँ, उनके पास वक्त नहीं है बूढ़े शख्स के लिए, इस बूढ़े शख्स के लिए, महमूद के लिए ना तो उनके पास वक्त, महमूद और उसकी यादों के लिए कोई भी वक्त उनके पास नहीं, वक्त ही नहीं है। They did not have time. इतने मशगूल हैं। Having grown up in a swift changing competitive world, इस बढ़ती और चेंज होती और क्या मुकाबला स्विफ्ट मैंने क्या था, स्विफ्ट नरम के माने में आता है, स्विफ्ट सॉफ्ट आता है, सॉफ्टवेयर के स्विफ्ट सुने, तेज इस तेज बदलती मुकाबला जाती दुनिया में, मुसाफाती दुनिया में, मुकाबला जाती दुनिया में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इस तेज बदलती मुकाबला जाती मुसाफाती दुनिया में उनके पास बड़े having grown up बढ़ना, जहाँ वो एक ऐसी दुनिया में पढ़ रहे थे जो स्विफ्ट चेंजिंग, तेजी से बदल रही थी, और क्रिएटिव वर्ड तकाबुली थी, और एक मुकाबला कर रही नहीं थी जी। दुनिया के बारे में, दुनिया की सिफत बता रहे वर्ल्ड की, वो दुनिया इस तरह की थी मोना, जो तेज बदलती और मुसाफाती दुनिया थी नहीं, इन में, वो उसमें मतलब तेजी से बदलती हुई और तकाबुली दुनिया में परवान चढ़ा। वो लोग क्या हुए थे, परवान चढ़े थे, बढ़े थे। असल में हाल का तर्जुमा करो इसका, हैविंग ग्रोन अप, हाल का तर्जुमा करो, फिर आएगा दे लुक्ड एट द ओल्ड काइट मेकर। आगे बढ़े, इसी को करें, इसी को सीखो। उनके पास बड़े बूढ़ों और उनकी यादों के लिए वक्त नहीं था, वो एक ऐसी दुनिया में बड़े बूढ़े क्यों कर रहे हो, सिर्फ एक है ओल्ड मैन। अच्छा, उनके पास महमूद के लिए वक्त नहीं था और उनकी यादों के लिए
चूंकि वो एक ऐसी दुनिया में परवान चढ़े जो एक तेज बदलती और मुसाबकाती दुनिया है। चल जाएगा मौना जी। तेजी से बदलती हुई और मुसाबकाती दुनिया में वो लोग बढ़ रहे थे, परवान चढ़ रहे थे। They looked at the old kite maker with the same indifference as they showed towards the banyan tree. वो काइट मेकर महमूद को इसी तरह देखते थे, इसी बेतवज्जुही के साथ देखते थे जिस तरह वो बनियान दरख्त को देखते थे। इंडिफरेंस मतलब बेतवज्जुही या गफलत से देखते थे, जैसे वो लोग बरगद की दरख्त की तरफ देखते थे, तभी तो पतंग फंस जाती थी। Both were taken for granted as permanent features that were of no concern to the mass of humanity that surrounded them. दोनों एक खेल, एक मुकर्ररा खेल के लिए बनाया गया था, यह था ग्रांटेड। ग्रांट बने क्या है? देना, इजाजत देना। मतलब इस बूढ़े शख्स और दरख्त दोनों सिर्फ खेलने के लिए थे। इसकी तरफ taken for granted as permanent fixtures, दोनों को इस्तेमाल किया गया, लिया जाता था, तब इस्तेमाल किया जाता। टेक फॉर ग्रांटेड मतलब इस तरह देखा जाता था जैसे कि परमानेंट फिक्सर। परमानेंट फिक्सर मतलब दायमी चीजों की तरह, दोनों को दायमी चीजों की तरह तस्वुर किया जाता था। दोनों को दायमी चीजों की तरह दोनों को महमूद को और दरख्त को, बनियान ट्री को, ठीक है, दोनों को both were taken for granted as permanent fixtures. Take for granted तस्वुर करना, ठीक है, ख्याल करना, तो दोनों को as permanent fixtures दायमी चीजों की तरह तस्वुर किया जाता था। That were of no concern to the mass of humanity, कि अवाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। अब जो है अवाम का इनका कोई ताल्लुक नहीं था। That surrounded them, जो कि उनका से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब उनको बिल्कुल छोड़ दिया था पेटेंटरी को, उसको भी कि उन दोनों को बस खेल के लिए इस्तेमाल किया गया था, यानी बस काम निकला छोड़ दिया। हाँ, मफहूम तो अदा हो जाएगा। क्योंकि आगे वही बात है। That were of no concern to the mass of humanity. Mass of humanity, इंसानियत, मास बने क्या था? मास बने क्या? आवाम बोलाना। आवाम पूरे का तर्जुमा, मास ऑफ ह्यूमैनिटी आवाम कर लेना। आवाम, ह्यूमैनिटी कंसर्न जानते हो? जी मोना, चूंकि ख्याल आता है, राबिया में पढ़ा था, गोल्डन बाउल में अगर पढ़ा होगा, गोल्डन तो ताल्लुक मतलब कंसर्न। तो इनका जो था अवाम से कोई ताल्लुक नहीं था, जो उनके इर्द गिर्द थी, आस पड़ोस थी, that surrounded them, जो उनके आस पड़ोस से कोई ताल्लुक नहीं था, बिल्कुल छोड़ दिया था। जल्दी पढ़ो। No longer did people gather under the banyan tree to discuss their problems
and their plans. No longer did people, कोई शख्स भी दरख्त के बचने, मौलाना आपकी आवाज नहीं आ रही, मौलाना आपकी आवाज नहीं आ रही मौलाना। नो लॉन्गर डिड पीपल मतलब अब कोई शख्स दरख्त के नीचे जमा होकर अपनी मुश्किलात और अपने मुस्तकबिल के अज़ाइम के सिलसिले में बात नहीं करता था। नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर, जमा होकर, चलो कर लो, जमा होकर अपने मंसूबों के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में डिस्कस नहीं करता था, बातचीत नहीं करता था। Only in the summer months did someone seek shelter under it from the wise sun. सिर्फ गर्मी के महीनों में कुछ लोग इसके नीचे तेज धूप के लिए बैठ जाते थे, शेल्टर जयपनाह बना लेते थे, बैठ जाते थे। तेज धूप से बचने के लिए लोग फायर से, तेज धूप से बचने के लिए इसके नीचे साया ले लेते थे, नीचे बैठ शेल्टर मतलब जयपनाह बोला। हाँ, तर्जुमा क्या होगा फिर? सीख शेल्टर बहुत आ चुका है, पनाह ले लेते थे, बोला पनाह लेना, बैठ जाते थे। और उनसे पूछना पड़े थे, खड़े रहते थे कि बैठते थे। कहीं जा रहे हैं, धूप बहुत तेज है तो थोड़ा आराम कर लिए उसके नीचे, खड़े होकर बैठ गए, बैठ ही जाते थे पुराने लोग। आज के लोग खड़े होकर मोबाइल चला लेंगे। एक पैराग्राफ और पढ़ लो ये। But there was of course the boy his grandson, लेकिन यहाँ पर हकीकत में उनके पोते की शक्ल में एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का जो रुका था उसकी शादी भी हो गई थी, तो उसे कह रहे हैं but there was of course the boy his grandson, उनके पोते की शक्ल में एक लड़का था, it was good that his son worked close by and he and the daughter-in-law could live in Mahmud house. कह रहे हैं ये अच्छी बात थी, it was good, ये अच्छी बात थी कि उनका लड़का, his son, उनका लड़का work close by, करीब में काम करता था, and he and the daughter-in-law, और वो और उनकी बहू, daughter-in-law बहू, could live in Mahmud house, महमूद के घर में रहते थे। लॉ क्या होता है ये? लॉ ये इसका वर्ड एक कंपाउंड नाउन है, तो इसी का इस्तेमाल होते हैं। डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, लॉ क्या है? ये बात में समझना, ठीक है। ये पैराग्राफ पूरा कर लो फिर समझ। तो ये लोग कहते हैं इट वॉज गुड, ये अच्छी बात थी, डेट की हिज सन वर्क क्लोज बाय, कि उनका लड़का क्या करीब में काम करता था, वो और उनकी बहू महमूद के घर में रहती थी। Included his heart to watch the boy at play in the winter sunshine, growing under his eyes like a young, well-nourished sapling putting forth new leaves each day. It gladdened his heart. ये उनके दिल को खुश कर देता था। क्या चीज? टू वॉच द बॉय, उन्हें लड़के को देखकर, लड़का मतलब पोता है, पोते को देखकर ये बात उनको खुश कर देती थी। क्या? एट प्ले, खेलते हुए, इन द विंटर सनशाइन, सर्दी की धूप में, सर्दी की धूप में पोते को खेलता हुआ देखकर उनको खुशी होती थी। Growing under his eyes like a young and well-nourished sapling, जो कि उनकी आंखों के नीचे, मतलब उनकी निगरानी में बड़ा हो रहा था। इस तरह like a young and well-nourished sapling, sapling कहता है पौधे को, एक नौजवान और अच्छी तरबियत याफ्ता पौधे की तरह।
ठीक है, सेबलिंग पौधा, छोटा दरख्त कर सकते हैं। तो एक नौजवान और अच्छी तरबियत याफ्ता पौधे की तरह, पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे, जो हर दिन नए नए पत्ते निकालता है। पुट माने रखना, फोर्थ माने आगे, न्यू लीव्स नए नए पत्ते, नए नए कोपल हर दिन निकालता है। फोर्थ क्या है? 4। फोर्थ वो 4 नहीं है, फोर्थ माने आगे सामने, पुट फोर्थ मतलब जाहिर करना, पुट फोर्थ माने जाहिर करना। तो इट गिलेटेड हिज हार्ट टू वॉच द बॉय, तो ये बात उनको खुश करती थी कि टू वॉच द बॉय, लड़के को देखकर, एट प्ले इन द विंटर सनशाइन, सर्दी की धूप में खेलता हुआ देखकर, ग्रोविंग अंडर हिज आईज, जो उनकी आंखों से नीचे बड़ा हो रहा था, मतलब उनकी निगरानी में देख में बड़ा हो रहा था। किस तरह? लाइक अ यंग एंड वेल नॉरिश्ड सेबलिंग, एक नौजवान और अच्छी तरबियत याफ्ता पौधे की तरह, पुटिंग फोर्थ, जो जाहिर करता था, पुट फोर्थ जो जाहिर करता था, न्यू लीव्स नए नए पत्ते, ईच डे हर दिन। कल ये पूरा देख के आओ नीचे